Assalamu alaikum and very good noon everybody. I hope मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी. We have got one participant at this moment. We have got Vasfa. Can you hear me? Your mic is mute, I think. Yes, sir, I can hear you. All right. So am I clearly audible to you? Yes, All right. Yes, very nice. So Vasfa, will you please introduce yourself to me, please? yes, sir. Will you please introduce Introduce. yourself? Okay, I'm I am Baspa Farooq from Narwal and Narwal district in Punjab, and I have done masters in microbiology, uh, and I All right. So intend to are you PhD using further. are you Yes, using headphones? Are you using headphones or earphones? no, sir, I'm not using. If you have, please put earphones or the headphones. Okay, currently I don't have. Then I will buy, inshallah, in the next session. But Jasper, that's very important. Yeah, these are some of the very important gadgets for the computer. Like for example, if you want to do anything without any distraction, without any problem, so you have to be having these things. So I was expecting ओके that you already knew such things. सर, एक्चुअली मैंने लिए थे तो एक उसका एयरपोर्ट गुम गया, तो वो फिर इस वजह से अभी मैं इस वक्त फिर वो मुझे दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे था कि मेरे पास है, तो तो मैंने उसका देखा उसका एक एक नहीं है, वो मेरा एक बेबी है ना, तो वो उस वजह से उसने घुमा दिया कहीं। तो एक तो है ना. हाँ जी। तो एक तो लग सकता है. ओके, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि शायद वो लग जाए, मुझे लगा था कि शायद दूसरा भी अटैच ना हो सर। नहीं नहीं, आपको एक से काम हो जाता है आपका. ओके ओके, इधर ही। चलिए मैं ना अभी बाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी वो मुझे वो भी मतलब कल तक मैं ले लेती हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो फिर मैं लगा लूँगी। सही है, अभी नहीं है आपके पास. नहीं अभी नहीं है, अभी शायद वो पता नहीं कहाँ है। वैसे मुझे आवाज़ आ रही है आपकी सही। अच्छा, चले अच्छी बात है. चले आपने आपकी कुछ चीजें जो है इनका मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट क्लास में आपके पास ये चीजें कंप्लीट हो. आई मीन इन गैजेट्स, ठीक है. सबसे पहले आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स होने चाहिए अच्छे वाले, ठीक है. यानी कि एक ऐसे हेडफोन्स लें या ऐसे ईयरफोन्स लें जो कि ठीक। कंफर्टेबल हो वाइल वेयरिंग. क्योंकि यू हैव टू बी वेयरिंग इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको काफी देर के लिए उनको पहनना पड़ेगा प्रिपरेशन के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से. तो दे शुड बी इजी ऑन ईयर्स, इस चीज का ध्यान में रखना है आपने. एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू बी हैविंग अ माउस विद योर कंप्यूटर. आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका माउस जो है वो होना उसके साथ लाजमी है. और माउस भी ऐसा ओके। हो जो कि रोलर के साथ हो. यानी आपको पता है ना, माउस के बीच में एक रोलर होता है अप एंड जी जी। डाउन करने के लिए. तो वैसे वाला माउस आपके पास होना चाहिए. So these are the two things which you have to be having with you all the time when you are practicing. And the third thing is that you have to be having a stable internet connection. Stability means कि अगर stable internet connection होगा, so when you are taking your classes, so you won't be having any problems whatsoever in terms of like you know
You can avoid disruption, and also voice quality is a lot better as well. Are you getting me? Yes. Do you understand it? Do you understand it, Baspa? Yes, sir. I am understanding. Okay, all right. So, Baspa, you want to do your IELTS academic, isn't it? Yes, because I have done masters, then now I want to do PhD. तो उसकी वजह से मुझे अप्लाई करना पड़ा। PhD in microbiology or something? माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। Okay, and your preferred country or where you want to go? सर मोस्ट प्रोबेबली मतलब स्वीडन, जर्मनी एंड यूएस। Mm-hmm. All right, that's very nice. That's very nice. And are you married? यस सर, आई एम मैरिड। Okay, all right. So, if you mind asking me, like, how many kids do you have? जी How many सर। kids do you have? सर आई हैव टू किड्स। Mm-hmm. One is All right. 3.5 years old, and then a 2 month old only. He is only 2 months old. God bless Yes. them. All right. So, Vaspa, you have to be having one thing in your mind. Yes, I Yes. know that you are a busy person. Are you also working somewhere, or you are just a housewife? Sir, actually, currently I'm not working, but like I have done jobs, but that currently I resigned because of pregnancy. तो वो जहाँ पे मैं काम कर रही थी तो वहाँ पे मुझे मैटरनिटी लीव मतलब 6 मंथ्स की मिलना तो बहुत टफ था। तो फिर इस वजह से फिर मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तो लग ही जाते हैं थोड़ा स्टेबल होने में, क्योंकि सिजेरियन में फिर मोस्टली यही होता है, मुश्किल होती है आना जाना भी, और देन अपने आप को थोड़ा रिकवर करना। Yeah, exactly. I understand. Okay, so Vaspa, you have to be keeping one thing in your mind. Yes, यस। you are a mother. You have got two kids. You have to be looking after them, and one is very young. He's very little. He needs your attention. But despite knowing all these facts, I would suggest you यस। that you have to be very committed. You have to be very dedicated in terms of यस सर। doing your IELTS, because it ओके। is going to require a lot of practice. यस So we सर। know that practice makes a man perfect. So the more practice you will do, the more better you will get time to time. So you have to be having dedicated study time along with these preparatory classes as well. यानी कि इन preparatory यस। classes के साथ साथ आपने एक टाइम को डेडिकेट करना है towards practicing whatever I am going to be giving you up, I am going to be assigning you up. इस चीज का आपने ख्याल करना है कि सिर्फ ये क्लासेस लेना काफी नहीं होगा, बल्कि उसके जी। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एंड दैट प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी विद कमिटमेंट, with dedication, and with a lot of focus, you can say. ठीक है, तो यस फोकस सर। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आई थिंक द बैंड स्कोर विच यू रिक्वायर दैट इज 7.5। यस। जी जी सर। हाँ हाँ, तो जी, तो इस बैंड स्कोर के लिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आइल्स एग्जामिनेशन जो है, इट इज नॉट लाइक any ordinary examination of your school, college, or university. It is यस। obviously going to require a lot of effort. हाँ जी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जी जी। स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास में ज्वाइन करते हैं,
उनके ज़हन के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर था कि हमको पहले से बता दिया जाता था या पहले से हमको पता होता था कि इस तरह की चीज़ें आएँगी या ये क्वेश्चन्स आएँगे। हम उसके हिसाब से तैयारी कर लेते थे या क्वेश्चन्स को याद कर लेते थे। So it is not going to be like in IELTS. Yeah. So for this, you have to be very focused. I यस hope सर। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जी जी सर। चलिए सही है। So now we are going to be formally starting our activities, our preparation. So all the viewers who are watching me from Facebook and YouTube, I welcome you. Today is the orientation session. This is the new batch. The batch is 12 p.m. to 3 p.m. and this is the academic batch. So if you guys want to join the session, so obviously you can contact our admission department. So obviously they can let you in this live session on the StreamYard. So Vaspa, you have to be having a notebook with you as well. ठीक है कि यस बहुत सर सारी आई चीजें हैव। ऐसी होंगी जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को भी मिलेंगी, बल्कि उसके साथ-साथ मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा और एक्सप्लेन करने के बीच में भी मैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा यानी उनके बारे में बता रहा हूँगा। तो ओके आपने दोनों चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना होगा। एक तो ओके। जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है और दूसरी चीज़ जो है, जो कि मैं बोल रहा हूँगा। क्योंकि जी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो स्क्रीन के ऊपर भी आपको देखने को मिले क्योंकि मेरे बोलने के अंदर भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि पूरे ध्यान से आप फ़ोकस करते हैं कि अगला शख्स जो है वो आपको क्या बता रहा है या आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। जी तो सर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए, ठीक है? जी ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम पहले इस चीज़ को देख लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो काइंडली ये जो एकेडमिक पार्ट है आपने सिर्फ इसको स्टडी करना है, इसको रीड करना है एंड यू हैव टू रीड इट अलाउड एंड रीड इट अ लिटिल स्लोअर एंड देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि ये क्या है। यस प्लीज। ओके। यू हैव टू रीड इट अलाउड, ऊंचा पढ़ना है बस। ओके 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 सर सॉरी। आई थॉट कि बस ऐसे खुद ही पढ़ना है। ओके एग्जाम्स वेरिएंट्स academics academics sorry ideal for the students applying to universities abroad emphasizes academic languages and skills. Aca- Academics readings and writing speaking for study context for higher education and research then general जी, इस for मैंने देख general। अस्पा देखिए मैंने जी सर। मैंने शुरू के अंदर आपको क्या कहा था? मैंने कहा था एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि पूरे के पूरे कान खोल के आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। जो भी मैं कह रहा होता हूँ आपने उसको सुनना है और उसको फौरन से पहले पिक करना है आपने। मैंने आपको ये कहा ओके था कि आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एकेडमिक वर्ज़न पढ़ना है यानी कि एकेडमिक सेक्शन आपने पढ़ना है। और उसके साथ-साथ ओके मैंने ये ओके भी कहा था कि मैंने उसके साथ-साथ ये कहा था कि यू हैव टू रीड इट अलाउड एज़ वेल। देखो ये मैंने क्योंकि 2 ओके इम्पोर्टेंट जी, बसपा मेरी पूरी बात को सुन लिया करें देन यू हैव टू से समथिंग इन द मिडल। मैंने आपको ये ओके 2 इंस्ट्रक्शंस दी थी। आपको ये 2 इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको सुननी चाहिए थी क्योंकि आपने इनको फॉलो करना था और यही आईएलटीएस एग्ज़ामिनेशन का एक रूल है। जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आपने मन्नो अन उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपने चलना है, उनके ऊपर काम करना है आपने। इज इट क्लियर? यस सर।
All right. So yes, please. So just read academic section of it, please. Ideal for the student applying to universities abroad, emphasizes academics, language and skills, academics reading and writings, speaking for study context, and for higher education and research. जी, तो जब हम आइल्स एकेडमिक की बात करते हैं, तो आइल्स एकेडमिक में हमारी इंग्लिश को असेस किया जाता है ऑन एकेडमिक क्राइटेरिया। व्हाट इज द एकेडमिक क्राइटेरिया? उससे मुराद ये है कि आपको जो भी चीज दी जाएगी, बेशक वो पढ़ने के लिए है, लिखने के लिए है, सुनने के लिए है या बोलने के लिए है, वो एकेडमिक्स से रिलेटेड होगी। अब एकेडमिक्स से रिलेटेड चीजें क्या होती हैं, जो कि न्यूज़पेपर्स के अंदर, रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर, साइंटिफिक मैगजीन्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर जो चीज पाई जाती है या जो चीज लिखी हुई होती है, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद होती है। तो टॉपिक्स कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स। वो रिसर्च बेस्ड भी हो सकते हैं, वो साइंटिफिक बेस्ड भी हो सकते हैं, दे कैन बी रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, biology, history, geography, psychology, etc., etc. You name it. So the topics can be of many different types, and they are going to be of many different kinds at the same time. I hope मेरी बात आपको Okay, समझ sir. आ गई होगी। यानी जी सर। आपकी इंग्लिश को एकेडमिकली असेस किया जाएगा, अवेलुएट किया जाएगा, और उसका एक सेट क्राइटेरिया है, उसका एक सेट पैटर्न है जो कि एग्जामिनर फॉलो करेगा आपकी किसी भी टास्क को, आपकी किसी भी एक्टिविटी को एवेल्युएट करते वक्त। नाउ दिस एग्जामिनेशन हैज 4 पार्ट्स, यानी आपके इस एग्जामिनेशन के 4 हिस्से हैं, जिनको हम मॉड्यूल्स जी। कहते हैं, जिनको हम पार्ट्स कह सकते हैं, सेक्शंस कह सकते हैं, मॉड्यूल्स कह सकते हैं। और ये तमाम सेक्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, और एग्जामिनेशन में इनका पैटर्न सेम ही रहेगा, यानी कि ये इसी तरतीब से ही आपका एग्जामिनेशन भी होगा। यानी सबसे पहले लिसनिंग का है और सबसे आखिर में स्पीकिंग का होगा। तो ये ऑर्डर या ये पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब जब हम इस पूरे एग्जामिनेशन की, यानी इन चारों मॉड्यूल्स की बात करते हैं, यानी इन चारों पार्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन है या टोटल दुरानिया जो है, वो है 2 घंटे 40 मिनट से लेकर 3 घंटे, लाइक 2 hours 40 minutes टू 3 hours, तकरीबन, कमोबेश। तो आपको ये एग्जामिनेशन एक सिटिंग में कंप्लीट करना होगा, यानी एक के बाद एक मॉड्यूल होगा जिसको आपने कंप्लीट करते जाना होगा। तो सबसे पहले हम जब अपने पहले मॉड्यूल की, जो कि लिसनिंग की बात कर रहे हैं, यू आर गिवन 30 मिनट्स टू कंप्लीट इट। यानी 30 मिनट्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के सवालात होंगे जिनके आपने जवाब देने होंगे। इसी तरीके से जब हम आगे मूव करते हैं, तो रीडिंग और राइटिंग में आपको 60-60 मिनट दिए जा रहे हैं, और जो स्पीकिंग है, इट इज द शॉर्टेस्ट। सबसे कम टाइम जो है वो स्पीकिंग का है। इट रफली टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। अब इसमें आपके पास चॉइस होती है एग्जामिनेशन में, आपके पास चॉइस ये होती है कि आप एग्जामिनेशन में जाकर एग्जामिनर को कह सकते हैं या इन्विजिलेटर को कह सकते हैं कि आपको फेस टू फेस इंटरव्यू करना है या आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इंटरव्यू करना है। बस डिफरेंस ये होगा कि एग्जामिनर आपके साथ, एक में एग्जामिनर आपके सामने बैठा होगा इन पर्सन, और दूसरे के अंदर वो कंप्यूटर के ऊपर ही आपका इंटरव्यू ले रहा होगा स्पीकिंग सेक्शन में। सो दैट्स हाउ योर एग्जामिनेशन इज अलाइंड अप। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। Is there any question? हेलो।
ओके, हर चीज क्लियर है। अगर कोई भी किसी जगह के ऊपर आपको कंफ्यूजन होगी, आपने इमीडिएटली मेरे से पूछना है, ठीक है? क्योंकि ये जितनी चीजें मैं अभी आपको ओरिएंटेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। ये एज इट इज एग्जामिनेशन के अंदर भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो इसके अपोजिट हो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो दैट मीन्स कि आप मेंटली प्रिपेयर भी हो रही हैं कि एग्जामिनेशन में क्या होने जा रहा है या एग्जामिनेशन में क्या आने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपकी इंग्लिश को कैसे एवेल्युएट किया जा रहा है या कैसे असेस किया जा रहा है, यानी कि उसका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। एग्जामिनर किस किस चीज को देख रहा है, यानी कि किस किस चीज को जज करेगा आपकी इंग्लिश की एबिलिटी के हवाले से। इट इज नॉट लाइक कि जैसे कि हमें असेस किया गया या हमको एवेल्युएट किया गया स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। ये एवेल्युएशन बिल्कुल उससे हटकर है। बिकॉज उसका तो कोई लाइक जी, लाइक द असेसमेंट क्राइटेरिया ऑफ आवर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, वो कोई असेसमेंट क्राइटेरिया नहीं। दैट इज अ शिट असेसमेंट क्राइटेरिया, जिसमें जो चेक करने वाला भी है जी, उसको भी नहीं पता कि वो असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ओके, एक आपका होता है ओवरऑल असेसमेंट क्राइटेरिया, यानी कि आपके चारों के चारों मॉड्यूल्स को किस तरीके से असेस किया जा रहा है। और एक होता है आपका हर मॉड्यूल का एक अलहदा असेसमेंट क्राइटेरिया, यानी कि लिसनिंग का अलहदा असेसमेंट क्राइटेरिया होगा, रीडिंग का अलहदा है, स्पीकिंग का अलहदा होगा और राइटिंग का अलहदा होगा। तो आपका जो आइल्स का सर्टिफिकेट होता है ना, उस सर्टिफिकेट के ऊपर दो चीजें लिखी होती हैं। एक तो जी, होता है आपका ओवरऑल बैंड स्कोर और एक होता है आपका इंडिविजुअल बैंड स्कोर। तो जी, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजेंट कभी कभार आपसे रिक्वायर करते हैं कि जी आपका ओवरऑल बैंड स्कोर 7 या 7.5 होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी आपका एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर 8 होना चाहिए, बाकी के अंदर 7 7 होना चाहिए। तो दैट इज अ जी, इंडिविजुअल असेसमेंट जी, क्राइटेरिया। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं योर ओवरऑल असेसमेंट क्राइटेरिया ऑफ योर आइल्स एकेडमिक। तो सबसे पहले ये जो चार चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, आपने इनको यू हैव टू रीड इट अलाउड। और उसके बाद फिर मैं आपको इन तमाम चीजों के हवाले से समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। और आई होप कि ना सिर्फ जो चीजें आप स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं उनको आप नोट डाउन कर रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसको भी टिक करती जा रही हैं और अपने पास नोटबुक के ऊपर लिखती जा रही हैं। यस सर, मैं लिख रही हूँ साथ साथ, ऑलराइट, ऑलराइट। नोट सो कर रही हूँ। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले चार नजर आ रहे हैं प्लीज। यस, आइल्स assessment criteria: fluency and communication, speak naturally, confidently, and express ideas clearly without long pause. Vocabulary range: use powerful, accurate, and varied vocabulary appropriately in different situations. Grammar and sentence accuracy: demonstrate strong control of grammar, sentence structures, and error free communication. Pronunciation and clarity: maintain clear pronunciation, clear stress, rhythm, and understandable speech. यस। तो पहला असेसमेंट क्राइटेरिया है कम्युनिकेशन। Communication means exchange of information. Exchange of information from one person to another person, or we can say one place to another place. तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, सेंडर और रिसीवर। अब इन दो अफराद में यानी सेंडर और रिसीवर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिसीवर होता है। रिसीवर मीन्स जो कि उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर का मैसेज को Yes, sir. अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उस मैसेज की अंडरस्टैंडेबिलिटी के हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उस मैसेज का ग्रामेटिकली करेक्ट होना जरूरी होता है।
उस मैसेज का किसी एक ऐसी लैंग्वेज में होना जरूरी है जो कि दोनों अफराद जो हैं जिसको समझ सकते हो, जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके साथ साथ उस मैसेज की सेंस या उसका मीनिंग ठीक होना चाहिए। So there are so many factors in communication. So your ओके। communication should be fluent. फ्लुएंट का मतलब है स्पीकिंग नेचुरली। देखिए इधर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि व्हाट डज फ्लुएंसी मीन। फ्लुएंसी मीन्स फ्लुएंसी डजंट मीन स्पीकिंग फास्टली। हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं फ्लुएंसी को तेज बोलने से। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। फ्लुएंसी मीन्स स्पीकिंग नेचुरली, यानी कि जो एक नेचुरल पेस होती है किसी भी जबान को बोलने की, ताकि अगला शख्स जो है वो एटलीस्ट उसको समझ तो सके जो आप कह रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंटली, यानी पुरएतमाद तरीके से। यानी आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं रिसीवर को, वो एक अच्छे तरीके से और पुरएतमाद तरीके से अगले शख्स तक पहुंच जाए। देन मूविंग ऑन टू वोकैबुलरी रेंज। देखें लैंग्वेज जो है ना वो अल्फाजों के ऊपर बनती है, अल्फाजों से बनती है। तो आपको जितने अल्फाज आते होंगे जी किसी सर। जबान के, आप उस जबान के ऊपर उतना ही आप अबूर रखते हैं, उस जबान के ऊपर आपको उतनी ही कमांड होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो जखीरा अल्फाज है वो अच्छा हो, और आपने उस जखीरा अल्फाज को बेहतर बनाने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने चीजों को पढ़ना है, सुनना है। फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती जाती है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप बेहतर तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर सकेंगे, अपना इजहार कर सकेंगे। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा या आपको पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा, तो आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होगी तो आप उसको समझ सकेंगे कि अगला शख्स क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है या क्या लिखा जा रहा है। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स दे कम अप इन इम्प्रूविंग वोकैबुलरी। उसके बाद नंबर 3 इट इज योर ग्रामर एंड सेंटेंस एक्यूरेसी। जैसे आपका एक्सप्रेशन देखें आपका एक्सप्रेशन जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी आपने अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर वो करेक्ट ग्रामर से स्पोर्टेड नहीं है, उसके अंदर अगर आपने सही ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया, ग्रामेटिकल बहुत सारी मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, जैसे कि कैपिटलाइजेशन की, पंक्चुएशन की, स्पेलिंग्स की, तो देन योर रिस्पॉन्स इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। आपका रिस्पॉन्स जो है उसको सही नहीं जाना जाएगा या उसको कंसिडर किया जाएगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि जो बेसिक कंपोनेंट है किसी भी लैंग्वेज का, वो बिल्ट इज बिल्ट अप ऑन ग्रामर। और ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपकी इंग्लिश को एकेडमिकली असेस किया जा रहा है, यानी वो इंग्लिश जो कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखी हुई होती है। यस एंड द सर। फोर्थ थिंग इज प्रोनाउंसिएशन एंड क्लैरिटी, यानी आप किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आप जो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो आपकी स्पीच में रिदम है, उसके साथ साथ आपकी स्पीच अंडरस्टैंडेबल है, लाइक द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट, एंड यू नो सच थिंग। तो ये पहले 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं आपके आइल्स के। एनी क्वेश्चन सो फार इन फर्स्ट 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज बस फॉर। यस सर। सर एक क्वेश्चन है कि जो द वोकैबुलरी है तो इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिक, या जो भी हमारे पास जो भी हम रेगुलरली या फिर जैसे हम उस टाइम पे बोल रहे होते हैं बस वही थोड़ा उसको एक्यूरेट करना है, या मतलब जैसे जीआरई की वोकैबुलरी है ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें भी वोकैबुलरी होती है। आप दोबारा से अपने क्वेश्चन को वो कर दें, थोड़ा सा मजीद रीफ्रेश कर दें सर या मेरा एक्सप्लेन कर दें ताकि। सिर्फ मतलब वोकैबुलरी है ना,
तो जैसे हमारे पास जीआरई का पेपर हम देते हैं, तो उसमें उसकी स्पेसिफिक वोकैबुलरी मतलब दी जाती है कि ये आप लर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह आइल्ट्स में भी वोकैबुलरी या फिर जो इसी तरह देंगे, या फिर उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ रीड करना पड़ेगा, या नॉर्मली जो हम आप पढ़ रहे होते हैं उसी को बस? आप एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे, जैसे कि जीआरई की किस किस्म की वोकैबुलरी, कोई 2-3 वर्ड या कोई ऐसे चीजें। फिर एक जो हमारे पास आती है ना, मतलब कोई भी वर्ड है तो उसके सिनोनिम्स आ जाते हैं जीआरई में, एग्जांपल मोस्टली दे वो दें, उसको थोड़ा कोई एग्जांपल। एग्जांपल दे दें मुझे भी। ओके, एक सेकंड। जल्दी से दे देना, जो दिमाग में कोई भी एग्जांपल आती है। सो जैसे एक वर्ड होता है ना, अडॉप्ट करना, देन उसके डिफरेंट सिनोनिम्स होते हैं, तो वो जीआरई में ना उसके डिफरेंट, वो आगे सिनोनिम्स पूरी एक वोकैबुलरी दी हुई है ए टू जी, अच्छा। ये आप ओके, लर्न समझ करें तो गया। इनमें से आप वर्ड्स यूज करेंगे। जी जी, मैं समझ गया हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी। देखिए, जैसे कि जब इस क्लास का आगाज हुआ था तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप अपने को कैसे इम्प्रूव करते हैं, कि अगर हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो हम जितना सुनेंगे, तो थ्रू द यूज ऑफ आवर जी ईयर हम नए से नए वर्ड सीखेंगे। यानी कि हम चाहें या ना चाहें ऐसा होता है। यानी कि अगर आप कोई जी चीज सुन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो आपको कुछ ना कुछ जो हिस्सा है वो उसका आपके दिमाग के अंदर फिर भी जा रहा ही होता है। आप बेशक उसको फोकस से सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, ये यस सर। नेचुरल है। इसके साथ साथ हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं थ्रू रीडिंग। हम जितना जी पढ़ेंगे उतना ही हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। हम अनइंटेंशनली वर्ड सीखते जाते हैं, हम लर्न करते जाते हैं। इसी तरीके से हम उसी सीखी हुई वोकेबलरी को राइटिंग के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि अपने एक्सप्रेशंस को राइट डाउन करते हैं। वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो आप यस सर। बिल्कुल आपको सिनोनिम्स का पता होना चाहिए कि किसी वर्ड्स के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं या पोटेंशियल सिनोनिम्स क्या हैं। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ऑलरेडी होती है। बट वी डू नॉट स्पेसिफिकली गो डीप इनटू इट, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है एट दिस मोमेंट। एनीवेज, अब आगे मूव करते हैं अपने अगले 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज के ऊपर, जो कि 4 आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। बसपा, विल यू प्लीज़ रीड देम? सर अभी मुझे वो बेसिकली आइट्स असेसमेंट क्राइटेरिया ही आ रहे हैं, शो हो रहे हैं। सॉरी, comprehensive skills, IELTS assessment criteria, comprehensive skills. Sorry sir. Sorry sir. Comprehension skills, understand spoken and written English effectively, including main ideas and details. Task achievements, answer questions completely, stay relevant and develop ideas logically. Hello, कट गया. Hello. जैसे करके देखते हैं.
Hello. Yes, can you hear me? Yes sir. ये All right. एक्चुअली आपकी वो कट गया था तो वो फिर मैंने लैपटॉप पे ऑन किया दोबारा तो वो दोबारा शो हो रहा है। नहीं, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली देयर वाज़ अ प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इस वजह से आई कनेक्टेड इट अगेन। तो कभी-कभार ऐसा मसला हो जाए, सो ऑब्वियसली डोंट पैनिक। आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है, सही है? जी, जी। तो हमको ये चीज़ें एक्सपेक्ट करती रहनी चाहिए। एनीवेज़, तो मैं जी क्या बात कर रहा था, मुझे ज़रा बताएँगी? सर, आप वोकैब्युलरी का बता रहे थे कि मतलब वो इस तरह से हमने उसको बेहतर बनाना है, तो दैट्स व्हाई देन हम अच्छा, ठीक है, चलो ये अब सॉरी नेक्स्ट सर, अब थोड़े-से आपने कहा था कि ये नेक्स्ट हम फर्स्ट स्टेप ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स इसको रीड करें। जी, जी, प्लीज़। Comprehension skills: understand spoken and written English effectively, including main ideas and details. Task achievements: answer questions completely, stay relevant, and develop ideas logically. Coherence and organization: present ideas in a structured, connected, and easy to follow manner. Time management: completes all tasks accurately within the official examination time limits. जी, तो सबसे पहली चीज़ जो है, इट इज़ कॉल्ड कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ऑलराइट? जी One सर। is called general understanding and one is called technical understanding. General understanding is very simple क्योंकि it is normally uh, कि व्हेन वी आर रीडिंग स्टोरी बुक्स, यानी कि जब हम जनरल इंग्लिश की कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स हो गई, सो ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी ईज़ी। लेकिन जब टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें टेक्निकल वोकैब्युलरी का भी पता होना। जी सर। यस सर। हेलो।
हेलो। हेलो सर। हेलो।
हेलो। आप उसको बता सको, आई मीन उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है, उसके अंदर जो बात बताना जरूरी है, वो इंटैक्ट रहे, वो उसी तरीके से ही रहे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको नजर आ रहा है, इट इज यू कैन से टास्क अचीवमेंट। देखिए, आपको जब भी कोई एक्टिविटी दी जा रही है, उस एक्टिविटी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ साथ आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, आई मीन टू से दैट। so that means that you have to achieve those tasks. That means listening has 40 questions, reading has 40 questions. So you have to answer all those 40 questions according to the instructions which are being provided to you. This is called task achievement. That how much task have you achieved? और हर टास्क के हवाले से देयर आर सम एक्सपेक्टेशन, यानी कि एग्जामिनर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस डिमांड करता है कि आपने वो क्राइटेरिया या वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी की हैं या नहीं की, उस एक एक्टिविटी को करने के हवाले से। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बस आपको एक्टिविटी दे दी गई और आपने बस उसको कर देना है, नो, देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो कि उसको करने के हवाले से आपने जहन में रखने होंगे। एंड देन वी हैव गॉट our next point, point number 6, that is called coherence and organization. Coherence means कि आपकी कोई भी राइटिंग या आपकी कोई भी स्पीच वो कोहिरेंट होनी चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए, उसके अंदर एक सीक्वेंस होना चाहिए, वो स्टार्ट टू फिनिश एक चीज लगे, आई मीन वो एक पीस ऑफ राइटिंग लगे या वो एक पीस ऑफ स्पीच लगे, उसके अंदर आइडियाज इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हुए हो, लिखे हुए हो या कहे गए हो कि दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द अदर पर्सन। दैट इज कॉल्ड कोहिरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपको पूरे एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। तो दैट मीन कि आपको उन उस टाइम में आपको बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज आपने करनी है। टाइम लिमिट है, टाइम लिमिटेड है, 40 सवाल के जवाब देने हैं आपने हर मॉड्यूल के अंदर। तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ स्ट्रेटेजी कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चलना है ताकि आप सारे के सारे सवालात के जवाब जो है वो दे पाए। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल वस्पा। यस सर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि जी आपका सबसे पहला जो मॉड्यूल है जिसको हम लिसनिंग कहेंगे, उसका क्या एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है, क्या चीजें एग्जामिनेशन में आएंगी या आने जा रही हैं, क्योंकि यही चीज एग्जामिनेशन के अंदर रेप्लिकेट होगी, इसी तरीके से ही चीजें आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। तो अब आपने बड़े ध्यान से इन तमाम चीजों को सुनना है और लिखना है। जब हम लिसनिंग के एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज 30 मिनट। जैसा कि आपको बताया गया है कि आइल्स जो है वो अब पाकिस्तान में कंप्लीटली सीबीटी एग्जामिनेशन है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसके लिए हमें सिर्फ 30 मिनट दिए जाते हैं। जो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये खुश नसीब कौमों के लिए है, खुशकिस्मत कौमों के लिए होती हैं ये चीजें। हम जैसी जो बदबख्त कौमें हैं ना, उनके लिए ये फैसिलिटीज या ये रियायत नहीं होती थी। पहले होती थी, पहले दी जाती थी, पेपर बेस्ड फैसिलिटी अवेलेबल थी पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने
इस बदबख्त कौम से ये फैसिलिटी ले ली है, उन्होंने कहा है कि बस तुम कंप्यूटर के ऊपर ही खुश रहो क्योंकि तुम उसी के काबिल हो। तो आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 30 मिनट दिए जा रहे हैं लिस्टिंग के हवाले से, जिसके अंदर आपने 40 सवालात के आपने जवाब देने होंगे, जो कि मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, समरी कंप्लीशन है, यानी कि वेरी जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर जिनका जवाब देते आए हैं। अब इस मॉड्यूल के अंदर किस तरह से चीजें होंगी, जैसा आपको नजर आ रहा है कि 4 ऑडियोज आपको सुनने को मिलेंगी, यानी एक के बाद एक ऑडियो होगी, एंड ऑब्वियसली दोज ऑडियोज आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ टॉपिक। मुख्तलिफ तरह के एक्सेंट्स जो हैं, यानी कि लहजे आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि अमेरिकन हो गए, ब्रिटिश हो गए, न्यूजीलैंडिश हो गए, कैनेडियंस हो गए। तो कोशिश ये करनी है कि आप अगर आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ आइल्स की ऑडियो सुनने के ऊपर ही इक्तफा नहीं करना, बल्कि कोशिश ये करें कि इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एंटरटेन्ड, अगर आपका कुछ और डिफरेंट सुनने का दिल कर रहा है या देखने का दिल कर रहा है, कोशिश करें कि इंग्लिश के अंदर उसको देखें या सुने। जैसे कि अगर मौसीकी की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश म्यूजिक सुन सकते हैं, अगर देखने की बात कर रहे हैं तो कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई इंटरव्यू सुन सकते हैं, एकेडमिक रिलेटेड थिंग। तो ये चीजें जो हैं आपके एक्सेंट्स को समझने के हवाले से आपको हेल्प आउट करती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू गॉट नो कंट्रोल ओवर द ऑडियो, यानी ऑडियो आप सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही सुन पाएंगे और आपका उस ऑडियो पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा। आई मीन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग इट, इन टर्म्स ऑफ रिप्लेइंग इट, इन टर्म्स ऑफ पॉजिंग इट और एनीथिंग। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफा में ही किसी चीज को पिक करना होगा, और पिक करने के बाद आपने उसका आंसर भी उसी सेम टाइम के अंदर ही करना होगा। तो आइल्स लिसनिंग को जो चीज थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाती है वो मल्टीटास्किंग है। व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीटास्किंग, यानी कि जब हम एक वक्त के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। लिसनिंग के अंदर हम अपनी 3 एबिलिटीज को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं 3 एबिलिटीज को। वन एबिलिटी इज लिसनिंग, यानी हम सुन रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं कि वो क्या बात हो रही है। दूसरी चीज होती है कि हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को हमने स्टडी करना होता है, उनको देखना होता है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि हमने क्वेश्चंस का आंसर भी तो करना है, यानी हमने टाइप करना है। तो जब हम ये तीनों चीजें कर रहे होंगे, सो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू रिक्वायर एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं आपको समझ आ गई होंगी। जी सर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि उन 4 ऑडियोज में आप क्या एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आपको क्या चीज सुनने को मिलेगी। और ये तमाम चीजें ऐसे ही एग्जामिनेशन के अंदर भी होंगी। हाँ, कंटेंट उसका चेंज हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तो यस मस्ता, विल यू प्लीज रीड अप? Okay, IELTS listening test, 4 key sections. First, conversation, a dialogue between two people in a casual or everyday situations, testing your ability to understand specific details and context. Monologue, a singer, a single speaker delivers a talk or speech, assessing your understanding of the main ideas and supporting details. Academic conversation, a conversation between two people in an academic or training context, focusing on comprehension of more complex decisions. Academics No. monologue, a lecture or presentation on an academic subject, testing your ability to grasp detailed information and
So एक्सप्लेनेशन, सॉरी। नंबर वन इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से मुराद होती है गुफ्तगू, यानी कि दो लोगों के बीच में जो भी मुकालमा हो रहा होता है या जो भी बातचीत हो रही होती है, जो एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में होती है, यानी कि जो कि रोजमर्रा के मामलात के हवाले से होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल होटल रिजर्वेशन एजेंट है और कस्टमर है, या कार डीलर है या कस्टमर है, या ऐसा हो सकता है कि शॉपकीपर है या कस्टमर है। यानी कि वो डायलॉग्स या वो सिचुएशंस जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि अगर वो होटल रिसेप्शनिस्ट है और कस्टमर्स के बीच में बात हो रही है, तो मोस्ट डेफिनेटली नाम पूछा जा रहा होगा, एड्रेस पूछा जा रहा होगा, पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा होगा, या कितने दिन का स्टे है, इस तरह की मालूमात ली जा रही होंगी। पहला जो सेक्शन है वो इट इज एवरीडे डायलॉग। वन थिंग यू हैव टू बी कीपिंग इन योर माइंड वसफा दैट हमारे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इस एग्जामिनेशन का, वो इजी से स्टार्ट होकर हार्ड के ऊपर फिनिश होता है। यानी कि लिसनिंग सबसे पहले इजी होगी, और इसके साथ साथ जब हम चौथे चौथे सेक्शन के ऊपर जाएंगे, सब सेक्शन के ऊपर, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगी। इसी तरीके से रीडिंग भी ऐसी ही होगी, यानी कि आसान से स्टार्ट होगी, डिफिकल्ट के ऊपर खत्म होगी। तो जब हम सेकंड सब सेक्शन पर मूव जी। कर रहे हैं, तो इट इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, यानी इस ऑडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक शख्स ही बात करता सुनाई देगा, जो कि किसी एक इवेंट के हवाले से या किसी एक लोकेशन के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होगा। लेकिन जाहिर बात है कि वो चीज रोजमर्रा के मामलात के हवाले से होगी, चीजों के हवाले से होगी, तो दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड, दे आर इजियर टू ग्रास्प, यानी कि उनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है, क्योंकि रोजमर्रा के मामलात के हवाले से होती है, वोकैबुलरी इतनी टफ नहीं होती। बट अब जब हम तीसरे और चौथे सेक्शन पर मूव करने जा रहे हैं, तो इधर आप देख सकते हैं कि दोनों में एक चीज कॉमन है, एकेडमिक। यानी सेक्शन 3 के अंदर इट इज गोइंग टू बी एन एकेडमिक डिस्कशन और एकेडमिक कॉन्वर्सेशन, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच के अंदर किसी खास एकेडमिक टॉपिक को लेकर या किसी असाइनमेंट को लेकर बात हो रही होगी। और डेफिनेटली एकेडमिक टॉपिक है, तो उसके अंदर अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे होंगे वो भी एकेडमिक तरह के अल्फाज ही होंगे। तो इट इज लाइक दैट। जब हम सेक्शन 4 पर मूव कर रहे हैं, तो ये कंप्लीटली एकेडमिक लेक्चर होगा, एकेडमिक टॉपिक होगा जिसके ऊपर ये लेक्चर दिया जा रहा होगा। यानी कि आपको टीचर या प्रोफेसर जो है वो आपको बात करते हुए सुनाई देंगे, और वो किसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन तमाम सब्जेक्ट से किसी एक से भी रिलेटेड हो सकते हैं। So I can say on a difficulty level, section 4 is most challenging, क्योंकि एकेडमिक डिस्कशन हो रही है, कंप्लीट एकेडमिक बात हो रही है, तो उसको पिक करने के लिए यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इनटू पिकिंग थिंग्स अप फ्रॉम इट। ओके, यस सर। ऑलराइट। तो अभी जितने मैंने चार मुख्तलिफ सेक्शंस के हवाले से आपको बताया है, तो जरा मुझे काइंडली जरा थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट यू हैव लर्नड इन ऑल ऑफ दीज फोर सेक्शंस प्लीज। सर लिसनिंग में, जी जी सर लिसनिंग में ना, सर इसमें जी जी। मतलब ये है जो भी हमारे पास लिसनिंग का टेस्ट होगा, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, तो वो बेसिकली या तो कोई मतलब किसी चीज़ का कोई, जैसे आप कह लें कि मतलब होटल वगैरह में है, या फिर कोई क्राइम सीन है उस तरह जी का, उसके बारे में पूरा पूछा जाए मुझे मतलब। समझ नहीं आई वस्फा, कैन यू प्लीज रिपीट इट। सबसे और हम इसके साथ साथ मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है पोर्टल का,
तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने इस पोर्टल को ज्वाइन करना है, इस पोर्टल लॉग इन करना है आपने, और अपनी स्क्रीन भी शेयर करनी है आपने स्क्रीन यार्ड के जरिए। ओके। आपको मैंने व्हाट्सएप के ऊपर पोर्टल पोर्टल आईडी और लॉगिन और पासवर्ड कर दिया है, तो आपने यही पासवर्ड यूज करते हुए इस पोर्टल पर लॉगिन करना है। जी। और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हुए बहुत एहतियात करनी है आपने, देख कर डालने हैं आपने। लॉगिन सर अभी करूं या अभी पहले ये जो आप कह रहे थे मुझे बताएं तो वो बताऊं पहले? ये अभी करना है आपने, अभी आपने इसको लॉगिन कर लेना है और उसके बाद अपनी स्क्रीन शेयर करनी है आपने मेरे साथ। पायोनियर प्रेप। हो गया? सर वर्षा हो गया? सर नहीं अभी नहीं हुआ। वो एक्चुअली चले कोई नहीं, पासवर्ड अपना मैंने एंटर। अपने अपना गूगल का कोई भी अकाउंट यूज कर ले, उसके अंदर कोई भी अकाउंट यूज करके लॉगिन कर ले। अभी फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में फिर मैं देखता हूँ उसको। ठीक है। जो भी आपका क्रोम में लगा होता है ना गूगल का, उसके जरिए आपका ही कनेक्ट। ठीक है सर। और उसके अंदर सारी डिटेल्स वगैरह वो आपसे अब शुरू में मांगेगा, तो आपने वो डिटेल्स आपको दे देंगे, पुट कर देंगे। हो गया? जी सर ये अपने गूगल अकाउंट से हुआ है। ठीक है, अब आप, जी कोई बात नहीं, चले अभी आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर लीजिए।
स्क्रीन गार्ड के जरिए ही आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा। प्लस के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगी शेयर स्क्रीन की। जब आप शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने टैब को शेयर करना है, यानी ये जो वेबसाइट यानी ये जो पोर्टल आपने खोला है सिर्फ इस पोर्टल को शेयर करेंगे आप मेरे साथ। और उसके साथ साथ ऑडियो को भी शेयर करना है, उसके अंदर एक ऑप्शन होती है, ऑडियो को क्लिक करने दीजिएगा। सर ये एंटायर स्क्रीन शो कर दूं मैं आपको? सिर्फ टैप सर हो करनी है गई? आपने। अ, नहीं, आपने टैब को शेयर करना है, अभी तक आपने शेयर नहीं की। नहीं हुई सर, एक शेयर द स्क्रीन आ रहा है पहले। सर हो गई? एक्सक्यूज मी सर, हो गई? यार ये तो मुझे पता ही नहीं। इस पे आ रहा हो गई है। यस, आई क्रिएट। ऑलराइट, तो बस ना आपने जो है ना उस टैब को शेयर नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। आपने अपनी पूरी स्क्रीन को मेरे साथ शेयर किया है। आप जब शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करती हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ एक टैब को, जो कि आपने पोर्टल यूज कर रही हैं आर्ट्स वाला, उस पोर्टल को सिर्फ शेयर करेंगी अच्छा आप। ठीक है, ठीक है। मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। आप अपनी स्क्रीन को बंद करें, दोबारा से शेयर करें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ओके। जी, आपने फिर भी टैब को शेयर नहीं किया, लेकिन एनीवेज उस टैब पे चली जाए बस ना, जो आइल्स ऑनलाइन टेस्ट का पोर्टल है। जी सर। ये इसमें करंट स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स, जी, गार्डियन, इधर वर्किंग आप करंट प्रोफेशनल। करंट स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। उसके बाद जी 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 जी। नीचे आएंगे जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और नेक्स्ट कर दें।
बस ठीक है, बाकी नेक्स्ट कर दें। आगे मूव करें ना, नेक्स्ट कर दें। सर वो नेक्स्ट नहीं आ रहा है, एक सेकेंड बस। आ गया ना, स्टडी ब्रॉड, उसके बाद टारगेट बैंड स्कोर करें। टारगेट बैंड स्कोर 7.5 करें, 1 मंथ करें। सर आगे सर फ्री कंसल्टिंग नाउ या बैक टू होम। जी, बैक टू होम कर दीजिए। जी, बैक टू होम। जी जी, हो गया बैक टू होम। जी सर। और आई तो 1 मिनट इधर, मेरे ख्याल से अभी तक शो नहीं हो रहा बैक टू होम, यानी आप लग नहीं रहा के होम स्क्रीन पे गई हैं। हो गया बैक टू होम, चली गई अपनी होम स्क्रीन के ऊपर आप। जी सर। अच्छा, लेकिन आपका मुझे इधर स्क्रीन आपकी रुकी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप दोबारा से शेयर करें जरा। जी, अब आ गई है मुझे नजर। जी, और एक मसला, अब आपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है। जी आपने सर। अब इस पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है, कि ये पोर्टल बहुत कम्प्रिहेंसिव पोर्टल है, जो कि आपके एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के हवाले से आपको हर हवाले से असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। आपने अभी माउस को जी मूव नहीं करना है, कहीं भी आपने नहीं जाना, सिर्फ मुझे बड़े ध्यान से सुनना है। आप अभी इसका ओके। जो है फ्री वर्जन यूज कर रही हैं, क्योंकि आप अपने गूगल अकाउंट यूज कर रही हैं, क्योंकि आपको कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। एनीवेज, आप इसको भी फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं, डजेंट मैटर। जी चले चले, अब सबसे पहले इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, कि हम जब किसी भी एक्टिविटी की, किसी भी टास्क की बात करेंगे, तो हमने उसको एक्सेस करना होगा, उसके ऊपर जाना होगा। आपको सबसे पहली ऑप्शन एग्जाम लाइब्रेरी की नजर आ रही है, आप उसके ऊपर अपना माउस लेकर जाइए प्लीज। यस सर। आइट्स लिसनिंग टेस्ट, आइट्स रीडिंग टेस्ट, जी, आइट्स। जब आप एग्जाम लाइब्रेरी के ऊपर आप अपना माउस, जी सर। जी, जब आप अब ये इनके ऊपर जाएंगे, तो अब आप इनका जो ऑर्डर देखेंगे, ये ऑर्डर वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया है, कि यानी कि लिसनिंग इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड इट इज एंडिंग ऑन द स्पीकिंग वन। यस So सर। now you have to click on the listening examination first. अपने लिसनिंग मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले। सर जी आगे सर। और इसमें आप, जी जी, इसमें आपने जिस चीज के ऊपर फोकस करना है, जिस चीज के ऊपर ध्यान देना है, कि आपका एकेडमिक टेस्ट जो है वो सिलेक्टेड होगा। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि एकेडमिक टेस्ट सिलेक्टेड है या नहीं है। एकेडमिक टेस्ट पे पहला क्लिक करेंगे, और एकेडमिक टेस्ट ये आपने मेक श्योर करना है, जब भी आपको एक्टिविटी दी जाएगी कोई भी, आपने मेक श्योर करना है कि वो एकेडमिक है या जनरल है। एकेडमिक पे क्लिक करने के बाद ठीक है। आपने फिर उस स्पेसिफिक सेक्शन को क्लिक करना होगा, जो कि जो भी आपको असाइन किया गया है, जैसे कि अगर वो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। तो एट दिस मोमेंट हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं, तो लिसनिंग को क्लिक करेंगे।
जी सर। लिसनिंग पे क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नाउ यू विल सी कि आपको अपनी लिसनिंग की तमाम एक्टिविटीज जो हैं, तमाम टास्क जो हैं, वो अब आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं आपको। आपने जी स्क्रॉल नहीं करना, इसी जगह के ऊपर अभी वेट करें आप। अच्छा जी, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी मैं आपको कोई एक्टिविटी असाइन करूंगा या कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, आपने उस ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। यानी कि सबसे पहली एक्टिविटी होगी जनवरी लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट 1। उसके बाद अगर मैं आपको कोई होमवर्क दूंगा तो वो इसी तरीके से आगे वाली होगी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। आपने इस ऑर्डर का ध्यान रखना होगा, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि ऑर्डर जो है वो मुझे भूल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का एक अपना ऑर्डर चल रहा होता है। तो आपने प्रैक्टिस टेस्ट के हवाले से ऑर्डर को ध्यान ध्यान में रखना होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपनी लिसनिंग एक्टिविटीज की या लिसनिंग प्रैक्टिसेस की, जो भी आपको असाइन की जाएगी, बेशक क्लास वर्क में है या बेशक वो होमवर्क में है। तो अपनी पहली एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे प्लीज। जनवरी लिसनिंग टेस्ट। जी जी। और अब आपको अपनी विंडो के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने अभी उस पर क्लिक नहीं करना। अपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है। अब जी आप ये सर। देख रहे हैं कि आपको, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके एग्जामिनेशन के चार हिस्से हैं, यानी चार सब सेक्शंस होंगे, और वो चार सब सेक्शंस जो हैं आपको एग्जामिनेशन में भी दिख रहे हैं, आपको सामने भी। यानी कि जी पार्ट सर। वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑल टुगेदर देयर आर 40 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है कि हर सब सेक्शन के 10 मुख्तलिफ तरह के सवालात होंगे। तो जी अभी सर। हम शुरू की बात कर रहे हैं, अभी हम अपनी प्रिपरेशन का आगाज कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हमें चीजों के ऊपर रश करने की जरूरत नहीं है। हमें ये भी ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चंस के ठीक आंसर किए हैं या कितने क्वेश्चंस के गलत आंसर किए हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस एट दिस मोमेंट। हमने अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है कि किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, या किस तरह के मुख्तलिफ टास्क होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। तो आपने सबसे पहले अनसेलेक्ट कर लेना है पार्ट टू, थ्री और फोर को। जी। पार्ट। पार्ट थ्री, पार्ट टू, थ्री एंड फोर को अनसेलेक्ट कर लीजिए। जी सर। और अब स्टार्ट सिर्फ नाउ पार्ट पे वन। क्लिक कर दें प्लीज। जी, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जी सर, कर दी। और स्टार्ट करने के बाद ऑडियो को स्टॉप कर लीजिए प्लीज, ताकि आप मेरी बात ध्यान से सुन लें। ओके सर। जी, सर अभी ऑडियो तो को आ भी रहा है स्टॉप कि कीजिए। मतलब क्लिक स्टॉप क्लियर कर। करने के बाद ऑडियो, जी ऑडियो को स्टॉप कर दें। सर अभी स्टॉप ही है। ठीक है, ऑलराइट। जी। तो अब आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है कि नाउ यू कैन सी कि ये जो इंटरफेस है, ये बिल्कुल इंटरफेस ऐसा ही होगा जैसा आपके एग्जामिनेशन में आप जिसका सामना करेंगे। नाउ यू कैन सी कि ऑडियो इज ऑन द टॉप। और जब हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ऑडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, रिप्ले भी कर सकते हैं। बट इन द एग्जामिनेशन दिस इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल टू अस। तो ओके। हर चीज जो है वो आपको एक सीक्वेंस के अंदर ही सुनाई देगी। हाँ, ऑडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस भी सुनने को मिलेगी, जैसे कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ सेक्शन वन, दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन वन, नाउ यू हैव 30 seconds टू रीड द क्वेश्चन, नाउ यू हैव 30 seconds टू चेक योर आंसर्स। तो इस तरह की मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो ऑडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेगी। तो आपने ना सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस को गौर से ध्यान से सुनना होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए दिखेंगे, आपने उनको भी पढ़ना होगा, ताकि
आप उन क्वेश्चंस का जो आंसर है उस लिसनिंग के अकॉर्डिंगली दे सकें। तो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे आप, क्लिक हेयर टू स्टार्ट द टेस्ट। यस सर। Listening ऑडियो practice को स्टॉप test. करें जी। Please turn to section 1 of the यस जी, सर। ऑडियो को ऑडियो के उसके कर्सर से बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएं। ऑडियो का जो आपको नजर आ रही है, बार नजर आ रही जी है, ऑडियो की बार से उसको बिल्कुल कोने में ले जाएं ताकि आपको टाइम जो है वो वापस 0 के ऊपर हो जाए। हाँ जी, जी अब आप सर। स्क्रॉल करके नीचे आए प्लीज। और अब जी आपको सर। 10 के 10 जो मुख्तलिफ सवालात आपको दिखे हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपने बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू रीड ऑल द 10 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ओके सर। सर मैं पहले पढ़ लूँ, मतलब खुद से पढ़ूँ या लाउड आवाज में पढ़ूँ? जी जी जी, नहीं नहीं, आपने खुद से पढ़ना है। सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ इन तमाम क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। आपको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि आपको क्वेश्चंस के जरिए आपको क्या पता लग रहा है। जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज को ध्यान में रखेंगे दफा, यू हैव टू कीप योर माउथ शट। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, बेशक वो लिसनिंग की एक्टिविटी है, रीडिंग की एक्टिविटी है, राइटिंग की है या स्पीकिंग की है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या पैसेज पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपने अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है। आपने उसके लिए अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है। आप साइंस की स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे तरीके से ये बात पता है कि देखें हमारे ब्रेन का डिस्टेंस हमारे मुंह से कितना ज्यादा है, लेकिन जी हमारे सर। ब्रेन का डिस्टेंस हमारी आंखों से कितना कम है। तो अगर हम एनाटॉमी को देखें तो जो चीज आंखों के जरिए जल्दी ट्रांसफर होती है दिमाग में, वो मुंह के जरिए नहीं हो सकती। तो इसको हैबिट बना लेना है कि जब भी आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है या रीडिंग के अंदर पैसेजेस को पढ़ना होगा, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करना होगा। सो कीप योर माउथ शट। ऑलराइट, तो वसवा, यस डिड यू रीड द क्वेश्चन? यस सर। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर मूव कर जाएं जी, स्क्रॉल करके ऊपर चले जाए बिगनिंग में। अब देखें, जी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही गई है कि ऑडियो के अंदर मुझे किस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है वो सुनने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा हो गया है। जैसे कि देखें ना, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नेम, यानी ऑडियो के अंदर हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो अपना पहला नाम जो है वो बता रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। देखें नीचे, स्क्रॉल करके नीचे आए। इसके अंदर देखें फोन नंबर, ऊपर आए ना क्वेश्चन नंबर 2 पे जी, इधर वो पूछ रहे हैं पासपोर्ट नंबर, यानी कि जी हो सर। सकता है कि पासपोर्ट नंबर से रिलेटेड कोई चीज आपको सुनने को मिलेगी। तो क्वेश्चंस का पहले पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एक्टिविटी के हवाले से, ताकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप अपने दिमाग के अंदर डेवलप कर लो
कि मुझे किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना होगा। ठीक है जी? जी तो अभी आप ऑडियो को प्ले करें और ऑडियो को प्ले करने के साथ-साथ यानी कि जब आप सुन रहे होंगे, उसके साथ-साथ जी आपने क्वेश्चंस का भी आंसर करना होगा। तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सामने होने चाहिए, यानी कि जैसे ही उसका आंसर आएगा, आपने इमीडिएटली उस हाँ जगह के ऊपर उसको टाइप करने स्टार्ट कर देना है आपने। यानी कि आपके माउस का जो क्लिक है, वो उस सेक्शन के ऊपर होगा। जैसे कि हम्म, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपका माउस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर होगा और उस खाने के अंदर वो क्लिक होगा। यानी कि आप इमीडिएटली अपना आंसर जो है उसके अंदर जैसे ही सुनने को मिले, आप टाइप करना स्टार्ट कर दें। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, तो आपका माउस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर होना चाहिए, यानी कि उस खाने के अंदर क्लिक होना चाहिए, ताकि जैसे ही आंसर आए आप टाइप करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? जी सर। ऑलराइट, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ सुनने की हद जी तक नहीं सर। है, आपने प्रैक्टिस कर रही होंगी, आपने इन चीजों को अप्लाई करना होगा। ऑलराइट, सो नाउ प्ले द ऑडियो। आई विल बी पुटिंग माई सेल्फ ऑन सो दैट वी कैन फोकस ऑन वट एवर इज देयर इन द ऑडियो, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। यस, देयर यू गो। Listening practice test. Please turn to section 1 of listening practice test. Section 1. Listen to the conversation between a Japanese student and a housing officer and complete the form. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example which has been done for you. The conversation relating to this will be played first. Yes, what can I do for you? My friend is in a homestay and she really enjoys it, so I'd like to join the family as well. Okay, let me get some details. What's your name? My name is Keiko Yochini. Could you spell your family name for me, please? Yes, it's Yochini. That's Yuichini. The student's family name is Yuichini, so that has been written on the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Yes, what can I do for you? My friend is in a homestay and she really enjoys it, so I'd like to join the family as well. Okay, let me get some details. What's your name? My name is Keiko Yochini. Could you spell your family name for me, please? Yes, it's Yochini. That's Yuichini. And your first name? It's Keiko. Keiko. That's Keiko Yuichini. Okay. And you're female. And your nationality? I'm Japanese. Right. And could I see your passport, please? Here it is. Okay. Your passport number is JO6337. And you are how old? I'm 28 years old. Now you're living in one of the colleges. Which one? Willow College, Rome 21C. Right, 21C, Willow College. And how long are you planning to stay with Homestay? About 4 months, longer if I like it. And what course are you enrolled in? Well, I've enrolled for 20 weeks in the Advanced English Studies because I need help with my writing. And I'm nearly at the end of my first 5-week course. Right, so you've completed 5 weeks and you have enrolled for another 15 weeks. That's about 4 months altogether. That's right, about 4 months. Before they continue their conversation, look at questions 6 to 10. As you listen to the rest of the conversation,
complete the form by filling in the numbered spaces 6 to 10. Okay, do you have a preference for a family with children or without children? I like young children, but I like to be with older people. You know, I like someone of my own age. Okay, and do you smoke or drink? No and no. Would you mind being with a family of smokers? Yes, I would. I don't like smoking. I'd rather be with a family of people who do not smoke or drink. Okay, what about pets? Oh, I love animals. I'm a veterinarian, so that's fine. The more the better. Alright, now what about you? Are you a vegetarian, or do you have any special food requirements? No, I'm not a vegetarian, but I don't eat a lot of meat. I really like seafood. And what about your hobbies? I like reading and going to the movies. Do you play any sports? Yes, I joined the handball team, but I didn't like that, so I stopped playing. You know, I played tennis on the weekend with my friends. Alright, let's see. Name, age, transport. Are you familiar with the public transport system? No, I'm not really, because I've been living on campus. I've been to the city a few times on the bus, but they're always late. What about the trains? I like catching trains. They're much faster. Well, let's go and check on the computer to see what I've got. Listen, would it be okay to leave this with me? Could you come back after class this afternoon? Yes, of course. I'll check my records and I will give you details this afternoon. Thank you for your help. It's a pleasure. I'll see you this afternoon. Bye. Bye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check All your right, answers. so stop it now, please. Stop the audio. Yes, sir. I have stopped. So now you can see, like, there were 10 different sorts of questions, and obviously according to best of your understanding you have answered them. So now we will see that how many questions you have answered correctly, and it will give you enough things to analyze yourself. Please submit the test, please. Here you can see on the top of the screen, submit. You can see that there is a submit button. Yes, just click on it, submit, and review your answers. So now, without scrolling down, you have to listen to me very carefully. देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पोर्टल इतना कम्प्रिहेंसिव है कि ये आपको आपकी सेल्फ प्रिपरेशन के हवाले से भी बहुत जगहों के ऊपर आपको हेल्प आउट कर रहा होगा. तो आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे नीचे, तो देखें इस जगह के ऊपर वो आपको ये बता रहा है कि आपका एक्चुअल बैंड स्कोर क्या है, यानी कि आपने कितने क्वेश्चंस का ठीक आंसर किया है. सो इट इज टेलिंग यू कि आपने 10 में से 4 सवाल का ठीक जवाब दिया है. अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, जो आंसर की आपको नजर आ रही है. अब देखें, जब भी हम पासपोर्ट डिटेल्स की बात करते हैं तो आपका भी जो पासपोर्ट नंबर है वो उसके जो पहले 2 लेटर्स जो होंगे वो कैपिटल के अंदर होंगे. सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो चीज़ जैसे होती है आपने उसको वैसे ही टाइप डाउन करना होगा. आई मीन इन टर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स एज वेल, कि अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, पहली चीज़. और उसके साथ साथ जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, वो कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आंसर कर रही हैं केक शॉप, सो केक का सी कैपिटल होगा और शॉप का एस जो होगा वो स्मॉल होगा. सो AI की मुख्तलिफ जो साइकोलॉजीज हैं उनको भी अंडरस्टैंड आपने करना होगा कि वो किस तरीके से आपको वैल्यूएट कर रहा है, ये चेक कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें वैसी ही होंगी इन द एग्जामिनेशन एज वेल. सो प्रॉपर नाउन्स को ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ जो कैपिटलाइजेशन की जो चीज़ बताई है उसको भी ध्यान में रखेंगे. अच्छा, ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं वस्फा, वो नॉनसेंस मिस्टेक्स होती हैं. नॉनसेंस मिस्टेक्स का मतलब है कि हमको उसके स्पेलिंग्स भी आते हैं लेकिन हम फिर भी गलत लिख देते हैं, यानी कि टाइपिंग की कोई एरर हो जाती है या फोकस का कोई एरर होता है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि नॉनसेंस मिस्टेक्स आपकी इसमें ना हो. अब देखें, जैसे कि आपकी एडवांस्ड इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर लाइक आपने स्टूडेंट्स और स्टडीज़ को मिक्सअप कर दिया, कंबाइन कर दिया.
जी, तो आपको ये अब 10 के 10 सवालात का ठीक जवाब भी आपको बता रहे हैं कि क्या सही आंसर होना चाहिए। तो जब भी एक्टिविटी को कंप्लीट करें तो स्कोर कार्ड वाले सेक्शन के ऊपर आपने कम से कम 3 से 5 मिनट जो है इसके ऊपर स्पेंड करने हैं, देखना है कि किस जगह के ऊपर आपने गलती की है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती दोबारा से मत दोहराएं। ओके स्क्रॉल सर। करके नीचे आए प्लीज, थोड़ा सा आइएगा और आपको आएगा नीचे एक्सप्लेनेशंस। ये देखें, रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशंस। आपको इवन वो ये भी बता रहा है कि इसके अंदर कि अगर आपका कोई आंसर गलत है तो वो गलत क्यों है और वो किस जगह के ऊपर, यानी कि आपको पूरे को पूरा ऑडियो जो स्क्रिप्ट है वो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा भी नजर आ रहा है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे प्लीज, थोड़ा सा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडो के ऊपर ही आना है, स्क्रॉल करके नीचे। आपकी देखें जो रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन वाला जो सेक्शन है उसमें आपको 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। आपने लेफ्ट पार्ट के ऊपर स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आप माउस इस्तेमाल कर रही होंगी और माउस में रोलर होगा तो आप ये काम बहुत आराम से कर लेंगी। लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन नजर आ रहा है उसमें आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। वस्फा, लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। ओके सर, सॉरी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, पहला आंसर नजर आ रहा है, उसमें आपको लोकेट की ऑप्शन नजर आ रही होगी। लोकेट पे अगर क्लिक करेंगे जी सर। तो देखें आपको वो बता रहा है कि आपका आंसर किस जगह के ऊपर मौजूद है, यानी किस जगह के ऊपर आपका आंसर लोकेटेड है। जी सर। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ऑलराइट, सो वस्फा, आपने अब नेक्स्ट क्लास से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास एक तो हेडफोन्स हो, दूसरी आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास माउस हो, ताकि ये तमाम ऑपरेशंस जो कि आपकी प्रैक्टिस के हवाले से हैं वो आप बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शंस हो गई आपको आपकी गैजेट्स के हवाले से। अच्छा जी, अब आपके होमवर्क्स हैं जो मैं आपको एक्टिविटीज असाइन करने जा रहा हूँ। ये जो एक्टिविटी जो आज हम क्लास में कर रहे थे, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपका होमवर्क है। इसके साथ साथ यानी आप जब इस विंडो को रिफ्रेश करेंगी तो ये एक्टिविटी दोबारा से खुल जाएगी आपके पास। तो जो 3 आगे आने वाली जो एक्टिविटीज है, यानी लिसनिंग एक्टिविटी 1, लिसनिंग एक्टिविटी 2, लिसनिंग एक्टिविटी 3, ये आपका होमवर्क है। ठीक है? ठीक है सर। स्क्रॉल करके ऊपर आए जरा प्लीज, आप इसी विंडो के ऊपर स्क्रॉल करके जिधर बैंड स्कोर वाला सेक्शन था उसके ऊपर चली जाए। जी सर। जी, आप जब भी अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगी आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आपने जो एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी के अंदर कितनी प्रोग्रेस आ रही है, उस एक्टिविटी के अंदर कितनी बेहतरी आ रही है। तो जब भी कोई काम करेंगे आखिर के अंदर ये स्कोर कार्ड जो है, ये स्पेसिफिक सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने मुझे शेयर करना है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है जी? ठीक है सर। ऑलराइट, सो आपको तमाम चीजें समझ आ गई? कोई एक ऐसी चीज जिसके हवाले से कंफ्यूजन हो मेरे से अभी पूछ रहे? नहीं सर, ठीक है। ऑलराइट, सर ठीक है। आपने कहा ना कितनी एक्टिविटीज करनी है, मतलब ये जो हमारे पास जनवरी है उसके ही बस ऑर्डर का आपने ख्याल करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, जो पहली 3 है आपने बस वो करनी है। ठीक है? जनवरी, फेब एंड मार्च, जी इस तरह से। तो पहली 3 है बस आपने वो करनी है, ऑर्डर का ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी? ऑलराइट, सो वस्फा, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो हैप्पी प्रैक्टिसिंग। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं, एनी क्लैरिफिकेशन और एनीथिंग। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।